إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माह मुक़द्दस की 23वीं साहरी आज सबको मुबारक हो और सिटी 42 की इस खुसूसी नशरियात नूर सहर के साथ मैं आपकी मेज़बान महविश निसार आपके साथ हूँ। नाज़रीन, बात की जाए अगर उम्मीद और खौफ खुदा की, जिस दिल में खौफ खुदा नहीं है वो दिल नहीं है, महज गोश्त का एक टुकड़ा है। और जिस शख्स ने अल्लाह से उम्मीद छोड़ दी यानी उसका ईमान गया। जिंदा दिल वही है जिसमें अल्लाह का खौफ मौजूद है और वो अपने रब से नाउम्मीद नहीं है। खौफ खुदा और अल्लाह से उम्मीद को कायम रखना, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये बताएंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मजहबी स्कॉलर्स, हमारे उलमाए दीन। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं सैयद अलामा हसन हमदानी साहब, उनके साथ मौजूद हैं साहबजादा अमानत रसूल साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अलामा अरशद हसन साकिब साहब। और जो आपने अभी तिलावत कलाम पाक सुनी है वो अदा की है कारी मुनीर हुसैन मोहम्मदी साहब ने। हम तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। अलामा हसन साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, खौफ खुदा और अल्लाह से उम्मीद को बरकरार रखना, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़िल क़ुरआन लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खालिक़ मुतलक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि हम इंसानों की कसरत को जहन्नुम में फेंक देंगे, बल्कि यूँ इरशाद फरमाया लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि जिन्नों और इंसानों की कसरत को हम जहन्नुम की खेती बना देंगे। उसकी खुदा ने आगे वजहें बताई हैं, उनमें से जो पहली वजह बताई
وہ سب سے پہلے یہی بتائی لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم نے ان کو دل و دماغ عطا کیا ہے، اس سے وہ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اگلی پھر 2 قسمیں ہیں، اور اس کے بعد خدا متعال فرماتا ہے کہ ہم نے انسان بنایا اور یہ چوپائے ہو گئے، بل ہم ازل، بلکہ چوپایوں سے بدتر ہو گئے۔ یعنی انسان وہی ہے کہ جس کو خدا نے دل و دماغ عطا کیا ہے، تو وہ خدا متعال کا اس میں اس کی جو جس مقصد کے لیے عطا کیا ہے انسان اس کی طرف متوجہ کرے۔ وہ ذات کے جو سورہ یاسین میں اشارہ فرماتی ہے نحن نکتب ما قدموا آثارہم، کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اس کو ہم لکھتے ہیں، فقط اس کو نہیں بلکہ اس کے اثرات کو بھی ہم محفوظ رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ یعنی وہ ذات کہ جو انسان سے کہتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا عطا فرمائے، اور پھر وہی ذات کہتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 نیکیاں عطا کریں گے۔ یہ تو وہ ہے کہ جو انسان خدا متعال کی بارگاہ میں نیکی لے کے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود انسان کہ جس کو عجول کہا گیا، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ انسان جلد باز ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اور جب غلطی کر بیٹھے تو پھر نہ امید نہ ہو بلکہ اس کی بارگاہ میں امید رکھے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی کے لیے کہا کہ من تاب قبل موتہ بسنۃ قبل اللہ توبتہ ومن تاب قبل موتہ بستۃ شہر قبل اللہ توبتہ ومن تاب قبل موت بشہر قبل اللہ توبتہ ومن تاب قبل موت بیوم قبل اللہ توبتہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ 1 سال پہلے موت سے توبہ کرے قبول کرتا ہے، 6 ماہ پہلے توبہ کر لے خدا کو توبہ قبول کرتا ہے، 1 مہینہ پہلے، یہاں تک کہا گیا من تاب قبل موت بغرغرۃ الموت قبل اللہ توبتہ، کہ اگر موت کی ہچکی آنے سے پہلے انسان بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے تو خدا متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو تو اس کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ صاحبزادہ امان نصری صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے نا امید نہ ہو، لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں جو اس امید پہ غلطیاں کیے چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا؟ دیکھیے، جو خوف اور امید کا معاملہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے ہر طریقے سے کوشش یہ کرتا ہے کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی حساب کتاب میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ خوف یہاں سے پیدا ہوتا ہے انسان میں کہ جب قرآن مجید کو انسان پڑھتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے، تو اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو ہر عمل ہے، اور یہاں تک کہ انسان کے خیال جو دل سے اور ذہن سے جو خیال گزرتا ہے، اس کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ یعنی انسان اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنی زبان سے بولتا ہے، اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے انسان، اور یہاں تک کہ انسان کے دل سے جو خیال گزرتا ہے، یہ سب کچھ ہے جو لکھا جا رہا ہے اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن، جسے ریکننگ کہتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ حساب اور کتاب اللہ کے بارگاہ میں انسان کا ہوگا۔ اب جب انسان اس کا تصور کرتا ہے، جنت کا، جہنم کا، حشر کا، قیامت کا، رب کے حساب اور کتاب کا، یہاں سے انسان میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان اپنی طرف سے جب آخری کوشش یہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنے حساب و کتاب کو درست رکھے، لیکن پھر بھی کمی بیشی کا احساس انسان کے اندر رہتا ہے، تو جو یہ کمی بیشی کا احساس انسان کے اندر رہتا ہے، تو در حقیقت یہاں سے انسان میں ایک امید کی کرن بھی پیدا ہوتی کہ شاید رب ذوالجلال میری اس کمی بیشی کو معاف فرما دے، کر دے، اس کو پورا کر دے۔ علامہ ارشد صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، ایک شخص نماز ادا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج ادا کر چکا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو کیا اب وہ مطمئن ہو جائے، لیکن اس کے باوجود تمام تر احکامات پورے کرنے کے باوجود خوف خدا اس کے دل میں ہونا چاہیے، یا وہ یہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ بس اب تو میں بخشا گیا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ اللہ پاک کی عبادت میں جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان میں خشیت خداوندی اور خوف خداوندی بڑھتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ بے خوف وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس عمل کی کوئی پونجی نہیں ہوتی ہے، عمل ہوتا نہیں ہے اور بالکل بے خوف ہوا پھرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امید اور خوف کے درمیان تعلق کا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، یہ ایک ہی سکے کے 2 الگ الگ رخ ہیں۔ خوف وہیں آتا ہے جہاں امید ہوتی ہے، اور امید وہیں آتی ہے جہاں خوف کا امکان ہوتا ہے۔ تو اگر وقت ہے اس سیگمنٹ میں تو میں بات کر لیتا ہوں، لیکن میں اس پہ ذرا تھوڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے تفصیل میں اس کا جواب لوں گی، تفصیل سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ امید اور خوف خدا کا آپس میں ناظرین کیا تعلق ہے۔ یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد علامہ صاحب سے یہیں سے ہم بات کو شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
कामरान स्टील में जदीद तरीन प्लांट्स पर लोहा तैयार करते हैं। कामरान स्टील, शेपिंग द फ्यूचर। गर्मी, रोजा, प्यास, हल सेहरी में तरशी शरबत इलायची का इस्तेमाल, जिसमें शामिल खालिस इलायची करे प्यास की शिद्दत कम। तो फिर दही में मिलाएं या कहवा बासानी बनाएं। तरशी शरबत इलायची। सब फटाफट खा लो तुम सब झटपट। बिग बदलाया खुशियाँ इस रमजान खास आपके लिए। अब 100 रुपए तक की जबरदस्त बचत पूरी रेंज पर। जैतून न्यू लाहौर सिटी की वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल कम्युनिटी में फौरी कब्जा, फौरी तामीर की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तहत रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के क़ब्ल वक्त कब्जे का आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात और फ्री गाइड टूर के लिए कॉन्टैक्ट 0800 110 11। जैतून, बियॉन्ड लाइफस्टाइल एक्सलेंस, प्राउड डेवलपर्स ऑफ न्यू लाहौर सिटी। बेबी की टमी खुश रहेगी तो फिर ही वो खेलेगा, सीखेगा और बढ़ेगा। इसलिए मैं इसे देती हूँ नेस्ले लैक्टो ग्रोथ। सिर्फ इसमें है जेंटल ग्रो, जो उसकी टमी को हैप्पी और हेल्दी रखने में मदद करता है। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। चांद रात से चांद रात तक कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। ये ऑफर डॉल्चे वीटा के स्प्रिंग मैट्रेस। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं?
لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ A healthy mind lives in a healthy body۔ آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک۔ شہر کے بہترین ڈاکٹرز، ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر۔ صحت آپ کی، سکون ہمارا، سٹی کلینک۔ دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے۔ کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے ڈرائیونگ، جس کا چاہے ریموٹ کنٹرول آن کر دیں، جس کا چاہے آف کر دیں۔ لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان مریضوں کو ٹرانسفر کر سکیں۔ ایک بیڈ کے اوپر 2 اور 3 مریض بیٹھے ہوئے۔ کوارڈینیشن ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی اور ہاسپٹلز کے درمیان۔ It is indifferent attitude۔ Unsolicited bid یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بن مانگے جو مل جائے، اس کا لفظی ترجمہ۔ اچھا یہ تو نہیں unsolicited ہم کہہ سکتے۔ دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعرات رات 8:05 پہ صرف سٹی 42 پر۔ ہم دیں گے آپ کو شہر کی ہر خبر، آپ کو کریں گے روزانہ اپڈیٹ، آج کے بھاؤ، سیلز ہو یا پروموشن، ہم آپ کو ملوائیں گے آپ کی پسندیدہ شخصیات۔ ادب، فیشن، شوبز اور سیاست، سب کچھ ملے گا آپ کو ایک ہی پروگرام۔ لاہور کے بارے میں سب کچھ جانیں۔ آپ کا میرا ساتھ ہوگا پیر سے ہفتہ، روزانہ صبح سٹی ایٹ 10 میں۔ دیکھیے سٹی ایٹ 10 پیر سے ہفتہ صبح 10:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی، بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی، اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش، اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ۔ پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز، کیونکہ ہم کریں گے انکشاف۔ دیکھیے پروگرام انکشاف اتوار کی رات 7:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ مسئلہ کوئی بھی ہو لاہور میں، سٹی 42 نے ہمیشہ بلند کی ہے آواز لاہوریوں کے حقوق کی۔ ایک بار پھر ایک ایسا پروگرام جہاں بولے گا سارا لاہور۔ آپ کر سکتے ہیں لائیو کالز ہمارے ان نمبرز پر 03174242 اور 03174242 آپ کو سنیں گے شہر کے بااختیار کو، تو بولو لاہور۔ باقی گلیوں میں ہوائے رحمت حق کی چلتی ہے وہاں روزو شب برستا ہے نور شام و سحر طیبہ
کی گلیوں میں، جدھر دیکھی اسی ماہ مبین کی چاندنی دیکھی، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں، درود پر سلام پر سلام پر، درود پر وظیفہ ہو یہی شام و سحر۔ بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی نعت خواں محمد عرفان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ جناب گزر ہو جائے میرا اگر طیبہ کی گلیوں میں، علامہ ارشد صاحب اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ خوف خدا اور اللہ سے امید کو قائم رکھنا، آپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پہلے ہم ان دونوں کی ڈیفینیشن کر لیں تو پھر ذرا اس طرف آنا زیادہ آسان رہے گا۔ امید نام ہے اس بات کا کہ انسان کے ذہن پر ایسے امکان کا غلبہ ہو جائے کہ جو چیز وہ پسند کرتا ہے وہ ہونے والی ہے، اس کو کہتے ہیں امید۔ مثلا میں چاہتا ہوں کہ صبح بارش ہو جائے تو میرے ذہن پر جب یہ امکان غالب ہو جائے کہ بارش ہونے والی ہے تو اسے امید کہا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے اس کے نہ ہونے کا امکان ذہن پہ غالب ہو جائے تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ عربی میں خوف جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے کہ انسان بے چینی کے مقابلے میں خوف آتا ہے۔ اچھا، اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ امید اور خوف اس جگہ بھی کبھی نہیں آتے جہاں آپ کو کسی بات کے ہونے کا پورا یقین ہو، اور جہاں کسی بات کے نہ ہونے کا پورا یقین ہو وہاں بھی نہیں آتے۔ مثلا صبح کل یعنی مطلب سورج طلوع ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے امید ہے کہ کل سورج طلوع ہوگا، یہ امید کا مرکز نہیں ہے، امید کا یہ اپنا مقام نہیں ہے۔ اور کل اگر فرض کرے کسی کام کے نہ ہونے، کل عید نہیں ہے تو میں کہوں کہ مجھے امید ہے جی کل عید نہیں ہے، تو بھائی یہاں امید کی کیا دکھ ہے، کل تو امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو امکان جہاں ہوگا وہیں امید بھی ہوگی، وہیں پر خوف بھی ہوگا۔ لیکن امید لگانے کے لیے بندے کو کچھ آثار پیدا کرنا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ زمین خریدتا ہے، اس میں ہل جوتتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھاد وغیرہ دیتا ہے اور صفائیاں وغیرہ کرتا ہے، جھاڑ جھنکار صاف کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ سے امید کرے کہ اللہ پاک یہاں پر اچھی کھیتی دیں گے۔ زمین ہی نہیں خریدی، بیج ہی نہیں ڈالا، پانی ہی نہیں لگایا تو امید کی کوئی یعنی صورت نہیں ہے۔ خوف بھی اسی صورت میں ہوگا کہ اس نے سارا کچھ کر دیا، پانی لگا دیا، بیج لگا دیا، اب یہ ایک اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ کوئی بجلی نہ گر جائے، کوئی آسمانی زمینی آفت نہ آ جائے، آندھی وغیرہ آ کے یہ خراب نہ ہو جائے۔ تو جہاں امید ہے وہیں پہ خوف ہے۔ بندے نے اگر امید کرنی ہے اولاد کی تو ظاہر ہے پہلے اسے شادی تو کرنی پڑے گی، شادی کرے گا تو امید بھی کرے گا اللہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے دیں، اور اسے اندیشہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک اولاد نہ دے۔ اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ جب ہم اختیار کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں امید بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے، اور ساتھ میں یہ اندیشہ بھی رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہ ہو سکیں۔ علامہ حمدانی صاحب، ہم خوف خدا کی جیسے کہ بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا کڑا حساب دینا ہوگا تو وہ مرنے والے کو بھول جائے گا، اس کو رونا چھوڑ کے خود کے لیے رونا شروع کر دے گا کہ کتنا کڑا حساب اسے دینا ہوگا۔ جی بے شک انسان جو ہے وہ نفس پرست ہے، خود پرست ہے، اور جس طرح روز معاشر کی جب تصویر کشی کی گئی تو کہا گیا کہ نفس نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔
माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बेटा माँ को भूल जाएगा। और यकीनन ऐसा ही है कि जब इंसान वाक़तन आखिरत के मुतल्लिक़ हकीकी तौर पे आगाह हो जाता है तो उसको अगर वो खुदा से उम्मीद की एक तवक्को ना हो, उम्मीद है यकीनन मैं गुनाहगार हूँ, खुदा मुझे माफ़ फरमाए, तो मुझे उम्मीद है कि रोज़े माशर शाफ़ी माशर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद होगी कि जिनके लिए खुदा कहता है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कि उनकी बारगाह में, खुदा की बारगाह में कौन है कि जो उसकी इजाज़त के बगैर शिफ़ात करे। और यकीनन शिफ़ात करने वाले शाफ़ी माशर हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमारी शिफ़ात करेंगे। नबी अकरम का ये इरशाद ग्रामी तवातर के साथ मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है कि अगर इंसान आखिरत के मुतालिक आगाह हो जाए कि वहाँ पे क्या मामलात होने वाले हैं तो मुर्दे को छोड़ के खुद अपनी फ़िक्र में मशगूल हो जाए। और यही वजह है कि जब जनाजा होता है तो वहाँ पे खड़े आलम दीन, चाहे वो किसी भी मकतबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, वो लोगों को खौफ दिलाते हैं आखिरत का। जब खौफ दिलाते हैं तो साथ में एक उम्मीद की यहाँ भी किरण बनती है कि जहाँ खौफ है कि क़यामत का खुद नज़ुल का खौफ है कि ऐसी होगा कि सूरज सवा नेज़े पे आएगा, ज़मीन तपते हुए तांबे की तरह हो जाएगी और गर्मी इतनी होगी, वहाँ जो है लवाल हमद का साया भी इंसान के लिए उम्मीद की कड़ी है। हमारे साथ कॉलर हैं जी खदीजा, उनसे हम उनका सवाल पूछ लेते हैं। खदीजा, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, अपना सवाल बताइएगा। लाइन में कोई प्रॉब्लम है खदीजा, हम आपको सुन नहीं पा रहे। ब्रेक के बाद आपसे हम आपका सवाल पूछेंगे दोबारा। जनाब, ब्रेक में मैं आपको ये बता दूं कि जो एक सेगमेंट मैंने आपसे अनाउंस किया था कि 5-10 साल की उम्र के जो छोटे बच्चे हैं वो हमें अपनी नात के क्लिप्स व्हाट्सएप करें, वो हम टीवी पे दिखाएंगे, तो इस ब्रेक में हम वो देखते हैं। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, City42.Lahore। City 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो City 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं, ये लाहौर है और हम हैं City 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं City 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है,
जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हमारा आपका साथ है और हमारा आज का मौजू है कि अल्लाह से उम्मीद बरकरार रखी जाए और आपके दिल में खौफ खुदा भी मौजूद हो। कॉलर है हमारे साथ मोहम्मद शहबाज, उनसे पूछ लेते हैं उनका सवाल क्या है। जी बताइएगा आपका सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि अक्सर घरों में झगड़े रहते हैं कि औरत कहती है जी मेरा मुकाम ज़्यादा है और बंदा उसका कहता है जी मेरा मुकाम ज़्यादा है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ मैडम कि माँ अपने बच्चों को ज़कात दे सकती है और बच्चे माँ बाप को ज़कात दे सकते हैं? सही हो गया, सही हो गया। अल्लामा अर्शद साहब, वही सवाल हमारे पास दोबारा आ गया है कि घर में मियाँ बीवी में ये झगड़ा रहता है कि बीवी समझती है या कहती है कि उसका मुकाम ज़्यादा है, शौहर समझता है कि उसका मुकाम ज़्यादा है। शरा क्या कहती है ये बता दीजिएगा। और दूसरा सवाल उनका ये है कि क्या वालिदैन अपने बच्चों को या बच्चे वालिदैन को ज़कात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल निसा 5वें पारे का दूसरा रुकू शुरू होता है। यहाँ से 2 रुकू पूरे होने के बाद तीसरा रुकू शुरू होता है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद। मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर और सरपरस्त हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने इनमें से एक फ़रीक को दूसरे फ़रीक पर यानी मर्द को अपनी बीवी के मुकाबले में फ़जीलत और बरतरी अता फरमाई है। ये तो अल्लाह पाक का फ़ैसला है। अब इसके मुकाबले में कोई अपने घर में ज़ाती फ़ैसला करना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है। और जहाँ तक दूसरी बात का ताल्लुक़ है कि माँ बाप अपनी औलाद को या औलाद अपनी माँ बाप को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, तो मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़े पहले भी मैंने अर्ज़ किया था। तमाम नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश है कि फ़ुक़हा की ज़ुबान में एक लफ्ज़ बोला जाता है उसूल और फ़ुरू। उसूल का मतलब है कि ऊपर के आपके सगे रिश्ते, बाप दादा परदादा, माँ नाना परनाना वगैरह, नानी वगैरह, और इसी तरह नीचे बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। भाई बहन भांजे भतीजे चचा फूफी वगैरह इन सबको दी जा सकती है। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ, खदीजा, क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे मौलाना साहब से ये क्वेश्चन करना है कि क्या मैं अपने निकाह वाले दिन रोज़ा रख सकती हूँ? हेलो जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं अपने निकाह वाले दिन रोज़ा रख सकती हूँ? हेलो जी ठीक है, आपका सवाल आ गया है।
मुझे इनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, क्या शायद वो ये कहना अपने चाहती हैं निकाह वाले दिन रोज़ा रख सकती हैं? अमानत साहब आप बताइएगा। देखिए उसका बेहतर जवाब तो लामा साहब भी इसके बारे में यानी कि वो चाहिए, बल्कि अगर रमज़ान में है तो रोज़ा तो फ़र्ज़ है। सही। हाँ, और निकाह कोई रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। यानी निकाह अगर रमजान में है हाँ, तो रोज़ा रख सकते हैं, और बिल फर्ज अगर रमजान में नहीं रखना है फर्ज है। अच्छा नहीं, वो तो फर्ज हो गया। अगर रमजान में नहीं है, रमजान के महीने से हटके है, तो क्या वो रोज़ा नफली रोज़ा तो आप छोड़ सकते हैं ना। नफली रोज़ा तो आपने रखा हुआ है, तब भी अगर किसी ने आपको दावत दी है तो आपका छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि आप उस पर ये जिताएंगे जी मेरा रोज़ा है। ओके, सही नफली रोज़ा। अमाना साहब, मैं आपसे अपने मौजू की जानिब आते हैं और आपसे बात करना चाहूँगी कि हम तो आम इंसान हैं, खौफ खुदा हम लोग शायद इस बारे में इतने अवेयर नहीं हैं या इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर हम नबियों पैगम्बरों की बात करें तो खौफ खुदा से वो भी अल्लाह के आगे हाज़िरी से कतराते थे, खौफ महसूस करते थे। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बहुत ही गिरिया उज़ारी करते थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के बारे में तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से नक़ल किया गया है मुख्तलिफ़ रवायात को, वाक़यात को, कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में गिरिया उज़ारी करते थे। गिरिया उज़ारी जो है वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो हैबत और रोब और दबदबा है, यानी जिसके लिए खशियत का लफ्ज़ कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया है। यानी कुरान मजीद में अगर हम खौफ को समझना चाहें तो खौफ के मुख्तलिफ़ पहलुओं को और जुज़ियात को मुख्तलिफ़ अल्फाज में कुरान मजीद ने बयान किया है। मिसाल के तौर पर रोज़े के हवाले से तकवा अल्लाह ने फरमाया। अब तकवा में भी खौफ अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए कि खौफ बुनियाद है कि इंसान परहेज़गारी इख्तियार करता है, इंसान गुनाहों से बचता है, इंसान अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करता है तो खौफ बुनियाद बन जाती है। इसी तरह खशियत है जी, और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकवा जो है वो भी इसी माना में मौजूद है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ना खौफ की, तो खौफ जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, जो हिकमत और दानाई और फरासत की जो बुनियाद है ना वो अल्लाह का खौफ है। यहाँ से इंसान को दानाई और दानिश और फरासत इंसान को नसीब होती है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, कौन हैं? और मिसेस अदील हैं जी हमारे साथ। मिसेस अदील, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये मैंने सवाल से ये पूछना था कि ज़कात और जो सदका हम अपने रिश्तेदारों को बताए बगैर दे सकते हैं, और अगर 7.5 तोले सोना किसी के पास ना हो और अगर उससे कम हो तो उसके ऊपर भी कोई ज़कात थोड़ी बहुत वाजिब है या नहीं है? और सदका रिश्तेदारों को अगर हम दें तो वो बता कर देना जरूरी हो? ठीक है। अल्लामा साहब बताइए। सवाल इनका बड़ा वाज़ेह है। बहन जी, ये 7.5 तोले सोना का मतलब ये होता है कि आपके पास ना कोई चांदी है ना कोई नकद करेंसी है, सिर्फ़ और सिर्फ सोने की आप मालिक हैं। उस सूरत में तो कम से कम 7.5 तोले सोना होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास 2-3 तोले सोना है, कोई तोला 1.5 चांदी है, कोई अपना 1000-2000 रुपये नकद पैसा भी मौजूद है, दूसरी चीज़ें अगर मौजूद हैं तो फिर सोना मेयार नहीं रहेगा। फिर ज़कात का मेयार ये होगा कि आपके पास इन तीनों चीज़ों की या 2 चीज़ों की मजमूई कीमत अगर 52 तोले चांदी के बराबर बनती है तो आप उस मजमूई कीमत की ज़कात अदा करेंगे। अदा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये पूछा कि बताए बगैर रिश्तेदारों को ज़कात या सदका दिया जा सकता है? आपने तो ये पूछा ना, बताए बगैर दिया जा सकता है। मैं ये कहूँगा कि बेहतर यही है कि बताए बगैर बगैर ही दिया जाए। हमदानी साहब, आपसे ये सवाल है, कॉलर का मुझे बताया जा रहा है वो शुगर के पेशेंट हैं, रोज़े से हैं, वो उनके पूछना चाहते हैं कि रोज़े के साथ शुगर चेक करवा सकते हैं? बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। किसी को ब्लड डोनेट करना चाहें तो भी दे कर सकते हैं, ड्रिप लगवाना चाहें तो भी लगवा सकते हैं। अब तो फुकहा यूसुफ करज़ावी मिस्र के जो मुफ्ती आज़म हैं उनका भी फतवा है, हमारे मराजा अयतुल्लाह सैयद अली हुसैन सिस्तानी का और अयतुल्लाह ख़ामनाई का भी फतवा है कि आप ताकत के इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं अगर कमज़ोरी से, निकाह से अगर आप रोज़ा नहीं रख पाते तो। अच्छा, ठीक हो गया। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ, नासिर, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम आपकी टीम को और मौलाना कराम को जो हमारे रहनुमाई के लिए मौजूद है। मेरा सवाल इनसे ये है कि शादी से पहले ख़वातीन का कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नाम होता है वो वालदा या वालिद के नाम से मंसूब होता है। शादी के बाद वो खामन के हवाले से उनका नाम वो तब्दील हो जाता है। आया कि ये कौमी नुक्ता निगाह से दुरुस्त है या गलत?
ٹھیک ہے جی، یہ سوال ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کا جواب ہم اس بریک کے بعد لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ I want to give my baby the best for his development. Science shows that proteins are essential to build a strong foundation. That's why I choose Nestle NanGrow 3 OptiPro. With proteins of an optimal quality, it strengthens his muscles, are essential for his health, for his growth, and optimum brain development, and are good for his tummy. Build a strong foundation for your child with the new Nestle NanGrow 3 OptiPro. इंसानियत से नाता ऐसा, एक इंसान है फरिश्ते जैसा, क्यों ना उनसे हम जा मिले। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है, ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है।
आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है। सिटी क्लिनिक, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 गदागर है सुहेल, भीख देता है जो साइल को सदा से पहले। देख लो रोज़ाए शब्बीर कज़ा से पहले। तूने मेरा अता की है वफा को गाजी, तूने मेरा अता की है वफा को गाजी। नाम आता है तेरा लफ्ज़े वफा से पहले। देख लो रोज़ाए शब्बीर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नात ख्वां फजल अब्बास स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अदायगी आपने की। अपने मौजू की जाने बढ़ते हैं। अल्लामा हमदानी साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी, मौला अली अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो खौफ खुदा के बायस नमाज में बाकायदा गिरिया किया करते थे। जी बेशक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी इसी तरह से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में जाते थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी रिवायत है अन्हा से भी कि एक सहाबी हज़रत आयशा की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। क्या किस तरह से? कहा मस्जिद नबी में मैंने देखा है कि वो कपड़े के नीचे रसूल खुदा इबादत कर रहे थे। अब ऐसे है कि जैसे उनकी रूह परवाज़ कर गई। जब आगे देखा तो रसूल खुदा की शाने हिल रहे थे। इस तरह मौला अमीर मोमिनीन के मुतल्लिक़ है कि वो जब नमाज में पहुँचते थे तो गोया कि खुदा की बरगाह में ख़ुद को हाज़िर तसव्वुर करते थे। इसीलिए किसी ने सवाल किया कि अली इब्न अबी तालिब, मौला क्या बताइए, क्या आपने खुदा को देखा है? तो फरमाया कि क्या मैं ऐसे खुदा की बात कर सकता हूँ कि जिसको मैंने ना देखा हो? तो कहा तो वो तो रोयत नहीं रखता। कहा नहीं, उसको इन आँखों से नहीं बल्कि बसीरत की आँखों से देखा जाता है। जब आपकी पिंडली में तीर लग गया और तीर पिंडली की सख्ती की वजह से बाहर निकालते बहुत तकलीफ़ होती थी, तो रसूल खुदा ने अपने असहाब से फरमाया कि मेरे असहाब रुक जाओ, जब अली नमाज में चला जाए तो उस वक्त अली की पिंडली से तीर निकालना। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जब नमाज में तशरीफ़ ले गए और सजदे की हालत में मौजूद थे, ज़ुबान पे सुबहान अल्लाह का विर्द था, तो पिंडली से तीर निकाला गया और आपको एहसास भी ना हो। बाद में लोगों ने पूछा कि अली इब्न अबी तालिब, जब आप मौजूद थे मैदान में तो आपकी पिंडली से तीर नहीं निकल रहा था, आप नमाज में पहुँचे तो गोया ऐसे निकला जैसे मक्खन से बाल निकलता है, जैसे मोम से तीर निकला हो। तो आपने फरमाया हाँ, मैं अपने पूरे वजूद के साथ उसकी बारगाह में हाज़िर होता हूँ। सुभान अल्लाह। अमानत रसूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सहाबी भी थे, फिर खलीफा भी रहे, और खौफ खुदा का आलम ये था कि आपने ये कहा कि काश मैं परिंदा होता, मुझे हिसाब किताब ना देना पड़ता। जी मेरे ख्याल इससे पहले वो सवाल भी एक दो थे जो कॉलर ने किया था। एक सवाल जी शायद याद आपको नहीं रहा, एक सवाल था ना जी, वो सवाल किया था किस हवाले से? हाँ, वो सवाल ये था कि खामंद का नाम के नाम के सकते हैं या नहीं, या यानी शरअ में क्या बाप, हुक्म जैसे है गैर शादीशुदा यानी जब शादी से पहले लड़की जो उनसे वो बाप का नाम इस्तेमाल करती है और शादी के बाद फिर खामंद का नाम इस्तेमाल करता है। तो इसका सादा और सिंपल सा जवाब ये कि जिसका हुक्म और जिसकी ममानियत ना हो तो उसका इन्हिसार उर्फ़ पर होता है, यानी आपके माशरे पर। अगर माशरे में उसको पसंदीदा समझा जाता है तो आप वो काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे माशरे में इस चीज़ को इख्तियार किया जाता है और ये राइज है कि हम जो बच्ची है, बेटी है या बहन है, वो अपने खामंद का नाम शादी के बाद इस्तेमाल करती है और उसे करना चाहिए, और ये चीज़ ज़्यादा पसंदीदा है तो उसको वो रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। तो एक सादा सिंपल तरीका है कि जहाँ पर शरीयत की ममानियत नहीं और जहाँ हुक्म नहीं है तो वहाँ पर इंसान जो उनसा है अपने माशरे के उर्फ़ पर और तरीके और रिवाज पर अमल करता है, अपना सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको मैं ये बताऊं कि मैंने कुछ देर पहले ये अनाउंस किया था कि व्हाट्सएप पे आप जो अपने बच्चों की नाच के क्लिप्स हमें भेजेंगे वो हम टीवी पर दिखाएंगे। आइए देखते हैं। सब्ज़ गुंबद वाले मंदिर
जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। या हबीब अल्लाह, ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी, प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा, ऐ रहमतल लिल आलमीन। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, मैं तो उम्मती हूँ, ऐसा है उमम, कर दे मेरे आका नज़र करम। मैं तो उम्मती हूँ, ऐसा है उमम, कर दे मेरे आका नज़र करम। और मासूम अदायगी आपने मुलाहिजा की। मौजूद की जानिब हम आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सहर टाइमिंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल, मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से, गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा।
ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر۔ ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم۔ ہم ہیں سٹی 42، ہم ہیں لاہور۔ جو سوچتا ہے وہ سوال کرتا ہے، جواب کہیں نہ ملے تو بڑھتی ہے الجھن۔ کیا ہے ہمارے طلباء کی الجھن؟ ان کے ذہنوں میں سوالات کیا ہیں؟ لاہور کے ارباب اختیار لاہور کے ذہین طلباء کے روبرو دیں گے ان کے سوالوں کے جواب۔ دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز، دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ لاہور سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج پاکستان چیمپئنز ٹرافی 2017 کا فاتح۔ لاہور سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں city42.lahore۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے۔ ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی۔ دیدار عطا کرنا اے نور خدا، آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے مولا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبرا ایوری ڈے سے آ جاتا ہے، ہر کپ میں گھل جاتا ہے،
जब मिले इतनी खास चाय तो दिल क्यों न गाए, तू ही मेरा प्यार। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। आज 23वीं साहरी है जनाब, और देखना यह कि जिंदा दिलाने लाहौर ने आज साहरी का एहतमाम कहाँ किया है। सिटी 42 के नुमाइंदे मोहम्मद नासिर हमारे साथ हैं। नासिर, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और कैसा एहतमाम देख रहे हैं यहाँ पर सहरी का? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं MM आलम रोड पर कैफ़े बैकयार्ड में, और यहाँ पर सहरी के औकात शहरियों की बड़ी तादाद आती है सहरी करने, और इस टाइम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिशेस की वैरायटी है। यहाँ पर थाई डिशेस है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, और जो यहाँ की ख़ास बात है, यहाँ का देसी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर मौजूद हैं, शहजाद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ की और क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, और जो शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती हैं उनको आकर यहाँ पर क्या फ़ील होता है, और वो कौन सी डिशेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सहरी के टाइम। जी, हमारा जो, जैसे आपने तारुफ तो करवा दिया, हम थाई, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ डिशेस जो लोगों में काफ़ी फेमस है वो सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ ट्रेडिशनल जो हमारा पाकिस्तानी फूड है, जो लाहौरी फूड है, उसमें लाइक पाए हो गए, निहारी हो गई, और बारबेक्यू में सीख कबाब हो गए, नान, तंदूरी पराठे, और साथ में उसके जो लस्सी है वो भी हमारी जो स्पेशलिटीज़ में शामिल होती है। सहरी के टाइम माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा क्राउड है, जैसे आप देख रहे हैं फैमिलीज़ निकलती है खाने के लिए। हमारे बड़े रेगुलर कस्टमर आते हैं, उसमें यंग्स भी हैं और फैमिलीज़ भी हैं, उसमें टीन एज भी हैं, काफ़ी लोग उसमें उसको एंजॉय करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि इनके पास सहरी के औकात में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद आती है शहरियों की, और यहाँ पर खानों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है। देसी फूड के अलावा चाइनीज़ फूड है, कॉन्टिनेंटल है,
और इसके अलावा थाई फूड भी है। यहाँ हमारे पास कुछ शहरी भी बैठे हुए हैं जो इस वक्त यहाँ पर सहरी का खाना खा रहे हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ आना ही क्यों पसंद करते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि आप कैफ़े बैकयार्ड का इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और देसी फूड। एज अ लाहौरी हम सब पाए और ये चीज़ें ही खाते हैं, और इनके काफ़ी इकनॉमिकल और टेस्ट बहुत अच्छा है। इस टाइम क्या खा रहे हैं? इस टाइम मैं पाए और निहारी खा रहा हूँ, लेकिन वो एंड होने पे आ गया ऑलमोस्ट। अभी दोबारा लूँगा। हाँ, लस्सी, कोई भी शहरी लस्सी के बगैर कंप्लीट नहीं होती, आई थिंक सो। तो बहुत अच्छा कैफ़े है, अच्छा इनका खाना है, टेस्ट भी अच्छा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। जी, जैसा कि शहरियों का भी कहना है कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो शहरी हैं वो शहरी के औकात MM आलम रोड पर ये जो कैफ़े है, कैफ़े बैकयार्ड, यहाँ का रुख बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, पूरे तमाम तरीके से सहारी हो रही है। जनाब मोहम्मद नासिर हमें अपडेट कर रहे थे। नासिर, आपका शुक्रिया। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है।
बॉडी। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742424172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कव्वा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया।
अबू रज़ा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर।
हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए प्रोग्राम लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर
اتوار کی شام 4:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ آپ نے مچھلی منڈی دیکھی ہے؟ ہاں، چیرنگ کراس کے پاس جو ہے۔ اچھا، آخری بار فلم کون سی دیکھی تھی؟ مال روڈ پہ جو دھرنا تھا۔ لاہوریوں کے وقت اور کرائے کی بچت کا نام ہے اورنج ٹرین۔ صحت اور تعلیم کا حصہ کھا جانے والی بلا ہے اورنج ٹرین۔ ہاں، فوڈ اتھارٹی کا ایک اور چھاپا ہوگا کیا؟ کوا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سرمئی ہے جناب۔ کالا ہے؟ نو۔ کرو از بلیک۔ گائے چٹائے چھوڑ یار۔ دیکھیے پروگرام سلام لاہور جمعہ ہفتہ اور اتوار کی شب 8:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ لاہور شہر کی صدیوں پرانی تاریخ، آثار قدیمہ، قصے کہانیاں، کھانوں اور روایتوں اور ثقافت کے بارے میں جانیے۔ کون کیا تھا، کس نے کیا کیا اور کیا بنایا۔ میں ہوں رضا کھرل اور یہ ہے لاہور۔ سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، تو مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ بہت خوب، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی۔ حافظ مصباح نعت خان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس نعت کی ادائیگی کی ہے۔ اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک کال لیں گے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال کرنا چاہ رہی کہ اگر شوہر جو ہے منع کرے کہ بہن بھائیوں سے نہیں ملنا یا اپنے ماں باپ سے ملنے نہ جانے دے، لڑائی کرے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، علامہ صاحب سوال آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر شوہر کہے کہ جی اپنے بہن بھائیوں سے نہ ملیں اور ملنے پر جھگڑا کرے تو ایسے میں احکامات کیا ہیں ایسے شخص کے لیے؟ اس میں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شوہر کا ایسا کہنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے جی، اور دوسرا یہ کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شوہر اگر اپنے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے ملنے سے منع کرتا ہے تو یہ سراسر زیادتی، ظلم
اور شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ گویا وہ اپنی بیوی کو قطع رحمی کا آرڈر کر رہا ہے، اور قطع رحمی کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں کفار کے اوصاف میں ذکر کیا ہے، مسلمانوں پر تو صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے، تو قطع رحمی کا حکم دینا اللہ کے حکم کے خلاف حکم دینے کے مترادف ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ایسا شوہر کر رہا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام رائج چیز ہے۔ خاتون کو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے یہ بھی تو پوچھا۔ خاتون کو دیکھیں بھئی، اب یہاں جب ہم خاتون کو مشورہ دیں گے تو وہ بڑا سوچ سمجھ کے دیں گے کہ آپ نے اپنا گھر بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا گھر بچانے کے لیے مصلحتاً کئی ایسی چیزیں کہ جن پہ انسان کی بڑی شدید خواہش ہوتی ہے وہ قربان کرنا پڑتی ہیں، تو حتی الامکان آپ یہ کوشش کریں کہ شوہر کو اس کے مزاج کو نیچے لانے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دے، ایسا نہ ہو کہ بہن بھائیوں کو محض ملنے کی وجہ سے آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں جی علامہ حمدانی صاحب، ہم بات کر رہے تھے تب امید اور خوف خدا کی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ شہباز، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال بتائیے گا، شہباز کالر ہے ہمارے ساتھ۔ سوال بتائیے گا، شہباز کالر ہیں۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے علامہ حمدانی صاحب، آپ ہی کی جانب میں واپس آؤں گی۔ ہم بات کر رہے تھے خلفائے راشدین کی اور صحابہ کرام کی خوف خدا کے حوالے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا اور مجھے آخرت میں حساب نہ دینا پڑتا۔ جی اس حوالے سے حضرت ابوبکر جب انہوں نے حلف خلافت کی بیعت لی اور اس کے بعد جب منبر پہ تشریف لائے اور ایک سیڑھی چھوڑ کر رسول خدا جس پہ تشریف فرما ہوتے تھے نیچی سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے، تو اس میں انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اپنی کثر نفسی سے کام لیا انہوں نے، اور اس میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں، جس طرح آپ ارشاد فرما رہی ہیں، اور اسی طرح سے کہ اے کاش کہ میں گھاس ہوتا اور بکری مجھے چر لیتی اور مینگنی کی صورت میں دوبارہ مٹی میں مل جاتا، وہاں پہ کثر نفسی کا اظہار ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے موضوع کے عنوان سے بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ امید جو ہے اس کی مد مقابل مایوسی ہے، اور مایوسی جو ہے وہ یقیناً ممنوع ہے اسلام کے اندر، بلکہ مایوسی کو کفر تک کی کہا گیا کہ یہ کفر ہے، اور خدا سے رجا و امید یہ ایمان ہے۔ صحیح۔ امان رسول صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کروں گی، جب آپ خلیفہ تھے تو اللہ کے خوف سے آپ اس حد تک ڈرتے تھے کہ جانوروں کے بھی آپ بہت زیادہ ان کا خیال رکھا آپ نے، کہ اس حوالے سے بھی مجھے جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ اس کا میں آپ سے جواب لیتی ہوں۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں نسیم بی بات کر رہی ہوں۔ سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ میرے میاں کی کافی عرصے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ طبیعت خراب ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ مالی حالات بھی کافی زیادہ ڈاؤن جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور میرے میاں کے ساتھ کافی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جھگڑا بھی شدید جو ہے نا وہ رہتا ہے ہر وقت ہی، تو اس کے لیے پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وظیفہ علامہ ارشد صاحب وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں، جھگڑا بھی بہت رہتا ہے اور تنگ دستی بھی بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی کے لیے تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتلا چکا ہوں، سورہ مزمل شریف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں، 11 بار دونوں ٹائم پڑھ سکے صبح و شام تو بہت اچھے، نہیں تو ایک ٹائم جو ہے نا وہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگا کریں، اور اسی طرح سورۃ القریش جو ہے نا وہ 72 ٹائمز جو ہے نا یہ ڈیلی پڑھا کریں۔ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ گھریلو اور معاشی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور دونوں سائڈ سے مطلب یعنی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ یہ اللہ پاک کا نام جو ہے نا یا حی یا قیوم، اس کو آیت کریمہ کے ساتھ ملا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے نا، اس کے ساتھ ملا کر یوں پڑھا کریں یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو گھر میں جو بھی اونچ نیچ لڑائی جھگڑے یہ وہ چیزیں معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر ہیں جی فیاض ہمارے ساتھ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے دو سوال ہیں بہت چھوٹے سے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو حکم کرے کہ جا بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، تو کیا یہ حکم ہے کہ ماں کا کہنا مانے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو خواب میں آئے تو کیا اس لوگوں کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ صحیح، ٹھیک ہے جی، سوالات دو آ گئے ہیں ہمارے پاس، ان کا ہم جواب دیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایوری ڈے سے آ جاتا ہے
में घुल जाता है। जब मिले इतनी खास चाय तो दिल क्यों न गाए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नूर सहार में हमारा आपका साथ है। बात हो रही है उम्मीद और खौफ खुदा के हवाले से। कॉलर्स हमारे साथ हैं। इकरा है हमारे साथ। कॉलर, क्या सवाल है आपका? जी, मैं अपने रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, रिश्ता आता है मेरा तो देख के चले जाते हैं, हम पसंद कर जाते हैं, पर रुकावट हो जाती है। सही। तो कोई बात नहीं करते। ठीक है, वजीफा जी। एक और कॉलर हैं जी हमारे साथ। क्या सवाल है आपका? अपना सवाल बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। मैं 5-6 साल से जब भी मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, 5-6 महीने मेरे सही गुजरते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तो जैसे ही मुसीबत 2-3 माह के बाद ख़त्म होती है, फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। ठीक है, हसीब का सवाल भी आ गया है। अल्लामा साहब,
शुरू करते हैं हम। एक हमारे पास कॉलर थे ब्रेक से पहले जिनका कहना था कि अगर माँ ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो ये हुक्म मानना जायज़ है? बिल्कुल मानना जायज़ नहीं है, और हरगिज़ किसी भी गुनाह को जो है ना आपने महज माँ के कहने पर जो है ना वो तलाक नहीं देनी, वरना 50 औरतों को आप तलाक दे देंगे, माँ जो है ना वो फिर भी राज़ी नहीं होगी। सही। दूसरा सवाल उन्हीं कॉलर का ये था कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है ख्वाब में, तो क्या इस ख्वाब से मुतालिक लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा ख्वाब आपकी है? मर्जी है, बताना चाहें तो भी कोई हरज नहीं है, ना बताएं तो भी कोई हरज नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें कि सिर्फ सच्चा ख्वाब किसी दूसरे को बतलाना चाहिए। झूठे ख्वाब की हदीस शरीफ में बहुत शदीद मजम्मत आई है, और उसकी सज़ा ये बतलाई गई है कि क़यामत के दिन जौ के 2 दाने दिए जाएंगे, और उसे हुक्म दिया जाएगा कि जब तक इन जौ के दोनों दानों के दरमियान गिरा नहीं लगा देते तब तक तुम्हारा जहन्नम का अज़ाब ख़त्म नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा जी, एक और कॉलर थी इकरा हमारे साथ, उनका ये कहना था कि उनके रिश्ते में रुकावट है, उसके लिए कोई वजीफ़ा उन्हें बता दें। जी, रिश्ते की रुकावट के लिए एक तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, और दूसरा जो है ना रिश्ते की खातिर सूरत मुम्तहिना, ये 28वें पारे की 3रे नंबर की सूरत है, इसको सिर्फ 21 दिन तक 21 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करेगा कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरे हमारे साथ एक कॉलर थे हसीब, उनका कहना था कि वो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद कोई ना कोई मुसीबत उन पर आ जाती है। देखिए, नमाज से तो मुसीबत ना आती है ना जाती है, नमाज तो एक फ़रीज़ा है अल्लाह पाक का, वो तो हमने हर सूरत में अदा करना ही करना है। नमाज का फ़रीज़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने तलवारों के साए में भी अदा किया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालत सजदा में शहीद हुए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु सजदे की हालत में शहीद हुए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में शहीद हुए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद हुए। और ये मसाइब तो कुछ भी नहीं है जिन्हें हम मुसीबत कह रहे हैं, सहाबा किराम ने और कुरून ऊला के मुसलमानों ने इस दीन की आबियारी की खातिर जिन मसाइब और शदाइद को यानी जो मुश्किलात आप पर आती हैं, आप नमाज से उन्हें कोरिलेट नमाज से कोई ताल्लुक ना उसका जोड़ें कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक की तरफ से अगर आजमाइश है तो वो नमाज पढ़ें तब भी आएगी, नहीं पढ़ेंगे तब भी आएगी। अगर अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ है तो वो नमाज पढ़ते हैं तब भी आती है, ना पढ़ें तब भी आती है, जिस गुनाह पर आपकी आ रही है। नमाज जी हाँ, ना पढ़ने पर ज़्यादा आएगी, पढ़ने पर तो कुछ ना कुछ तखफीफ हो जाएगी। अलबत्ता ये सोचना कि नमाज की वजह से आती है, इसमें और कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ एक बात हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जब आप नमाज शुरू करते हैं तो शयातीन आपको परेशान करने के लिए आपके लिए कोई मसला खड़ा करते हैं, यानी नमाज वो जारी रखें, उसमें कोई रुकावट ना आने दें। फर्ज है। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा हमदानी साहब, हम बात करें तो खौफ खुदा के हवाले से हमारा साथ जो उसके एक टॉपिक है, मौजू है, वो है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, ना उम्मीद ना होना। और अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया है कि मुझसे अच्छा गुमान करो तो मुझे अच्छा ही पाओगे। बेशक वो ज़ात वो जो इंसान को खल्क करती है और उसको सब कुछ अता करती है, बल्कि उसके दुनिया में आने से पहले उसके माँ बाप के दिल में इस तरह से मोहब्बत डाल देती है कि माँ बाप उसके आने की सारी तैयारियाँ, यानी अभी दुनिया में नहीं है, उसके लिए कपड़े मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हो जाती हैं, और उसके बाद भी जब तक वो ख़ुद अपने चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता, वालदैन के ज़रिए से, दीगर अज़ा करवा के ज़रिए से, हत्ता कि वालदैन ना भी हों, अज़ीज़ व क़ारिब ना भी हों, तो खुदा किसी न किसी के दिल में रहम डालकर उसके लिए वो एहतमाम करवा देता है। वो ज़ात इतनी करीम है कि जिसके लिए मिसाल दी जाती है कि जी 70 माओं से ज़्यादा, वरना ये मिसाल उसकी ज़ात को जचती नहीं, लाइसा कमिसल शख्स जैसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। तो बस वो ज़ात इतनी गफूर और रहीम है कि जिस तरह हज़रत मूसा के ज़माने में एक बंदा जो है वो गुनाहगार था, और इतना बड़ा गुनाहगार था कि खुदा मुताल ने हज़रत मूसा पे वही की थी, मूसा जब तक इस कौम में ये है तो मैं बारिश नाज़िल नहीं करूँगा। वहीं पे खड़े हो गए उस बंदे ने सिर्फ दिल में कहा, परवरदिगारा अगर मैं इन दरमियान लोगों के दरमियान से चला जाऊँ तो मैं बेइज्जत हो जाऊँगा, मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो खुदा ने कहा, मैं खुदा आज माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो खुदा ने उसी वक्त बारिश नाज़िल कर दी। लोगों ने मूसा से पूछा, मूसा बंदा तो गया कोई नहीं, तुम कह रहे थे जब तक वो बंदा नहीं निकलेगा खुदा रहमत नाज़िल नहीं करेगा मेरी दुआ पर भी, बंदा तो गया कोई नहीं है। तो खुदा से मूसा ने पूछा, परवरदिगार वो बंदा कौन है कि जो गया भी नहीं और तूने बारिश। खुदा ने कहा कि उस बंदे को छोड़ो, वो पहले मेरा दुश्मन था, मेरा दोस्त हो गया। यानी उसकी ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, चाहे इंसान जितना भी गुनाहगार। जिस तरह बंदा गुलाब से लिपट के दुआ मांग रहा था और कह रहा था मुझे पता है तो मुझे माफ़ नहीं करना, तो रसूल खुदा ने कहा कि चाहिए तो ये कि इसकी गर्दन काट दी जाए, वरना ये है कि इसको बता दिया जाए कि खुदा इतना गफूर रहीम है कि बंदों की ख़ता जो तुमसे हुई हैं, हकूकुल अबाद छूटे हैं, उनके सिवा खुदा हकूकुल्लाह सब माफ़ कर देता। कॉलर हैं जी हमारे साथ शहबाज, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा सवाल ये कि मैं अक्सर ख्वाब में ना अक्सरियत कोई महीने में 25-26 दफ़ा ना ख्वाब में देखता हूँ बकरे, कभी खरीद रहा हूँ,
कभी बकरों को ज़बह हुआ देख रहा हूँ। मतलब कि ये काम मुझे, यानी आप इसका सबब जानना चाहते हैं, ताबीर जानना चाहते हैं। जी अल्लामा अरशद साहब बताइए। देखिए मेरे भाई, बकरे जो है ना, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम से इनकी बड़ी ख़ास निस्बत है कि कोई पैगम्बर ऐसे नहीं गुजरे हैं कि जिन्होंने बकरियां न चराई हों। तो ये अल्लाह पाक की बहुत बाबरकत मखलूक है कि जिस घर में ये होती है इसमें अल्लाह पाक बड़ी बढ़ोतरी देते हैं। तो इसका देखना आपके लिए इंशाल्लाह माली और कारोबारी एतबार से कामयाबी और खुशखबरी के अलामत। साहब वक्त कम रह गया, दुआ की जाने बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन। या अल्लाह पाक, ये जो रमज़ान शरीफ के चंद दिन बाकी रह गए हैं, इनकी पूरी पूरी कदर करनी नसीब फरमा, इनके लम्हे लम्हे को इस्तेमाल करना नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, ये जो 3-4 ताक़रातें रह गई हैं उनका बिलखुसूस एहतमाम करना नसीब फरमा, उनके नवाफिल पढ़ने, उनमें ज़िक्र अज़कार करने, तिलावत करने, सदक़ा व खैरात करने, या अल्लाह तेरे सामने रोने, गिड़गिड़ाने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह पाक, तमाम मरीज़ों को सेहत कामिल अता फ़रमा। घरों में जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं या अल्लाह उनको सुकून से तब्दील फ़रमा। या अल्लाह, जो लोग जिस जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। आलम इस्लामी को या अल्लाह आपस में यकजहती और इत्तेफाक नसीब फरमा। या अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा पे जो ख़तरात के बादल इस वक्त मंडला रहे हैं उन तमाम ख़तरात को दूर फरमा। हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को या अल्लाह पाक पूरा फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक सालेह फरमा बरदार औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जिनको औलाद दी है उनको अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जो दुआएं हम मांगते हैं वो भी कबूल फरमा और जो नहीं मांग सके वो भी अपनी बारगाह से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु। Ramzan transmission was brought to you by Nestle Cerelac। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर।
हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए प्रोग्राम लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर
اتوار کی شام 4:05 پر صرف سٹی 42 پر۔ آپ نے مچھلی منڈی دیکھی ہے؟ ہاں، چیرنگ کراس کے پاس جو ہے۔ اچھا، آخری بار فلم کون سی دیکھی تھی؟ مال روڈ پہ جو دھرنا تھا۔ لاہوریوں کے وقت اور کرائے کی بچت کا نام ہے اورنج ٹرین۔ صحت اور تعلیم کا حصہ کھا جانے والی بلا ہے اورنج ٹرین۔ ہاں، فوڈ اتھارٹی کا ایک اور چھاپا ہوگا کیا؟ کوا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سرمئی ہے جناب۔ کالا ہے؟ نو۔ کرو از بلیک۔ کائیں چٹائے چھوڑ یار۔ دیکھیے پروگرام سلام لاہور جمعہ ہفتہ اور اتوار کی شب 8:05 پر صرف سٹی 42 پر۔